اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بنانے جا رہا ہوں پٹاٹو کری، جس کو پٹاٹو باجی بولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ہمارے ایک دوست کی فرمائش تھی کہ آپ ساتھ میں اپنی آواز سے ہم کو بتائیں میتھڈ بھی اس کا۔ تو آج میں پہلی دفعہ آواز کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اگر کچھ آواز میں مسئلہ ہوا تو پہلے سے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، یہ مسالہ جات ہیں، اور یہ ہم نے آلو لیے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سب بتاتا جاؤں گا۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم ڈالیں گے 2 ایسے والے چمچ آئل کے۔ جی، یہ ہو گئے 2، اور ابھی تھوڑا سا میڈیم ہیٹ پہ اس کو ہم پکنے دیں گے۔ تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ماسٹرڈ سیڈ۔ اس کو سرسوں کا آپ دانے کہہ سکتے ہیں، اور کیونکہ ادھر ماسٹرڈ سیڈ ہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ۔ اس کو آپ کو اس کے کڑک کڑک کی آواز جو آ رہی ہے نا، ایسی آواز آنی چاہیے۔ اور یہ کڑی پتہ ہے، اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس میں ہم ڈال رہے ہیں اس کی مین چیز پیاز، جس سے اس کی گریوی بنے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی پیاز جو ہے وہ آپ 2 kg اگر آلو لیں گے تو اس کے لیے آپ کو پیاز چاہیے 6 سے 7 عدد، تھوڑا سا بڑا سائز کا۔ اور اگر آپ 1 kg بنا رہے ہیں تو 3-4 پیاز کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ چوپ نہیں کرنے کا، سلائس کاٹ کے تھوڑا سا اس کو چوپ کر لینے کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا مکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ ایسے ہی اگر پروسیجر سے بنائیں گے تو آپ کو کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم ڈال رہے ہیں نمک، اور نمک اس وقت ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیاز کا کچا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی اس میں ہم گرین چلی ڈال رہے ہیں، اور پیاز بھی جو ہے وہ ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی آواز بھی میری خراب ہے۔ یہ ابھی ہم ڈال رہے ہیں اس میں تھوم کے آپ 8 سے 10 عدد یعنی اس کے لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ڈالیں گے ادرک ایک چھوٹا سا، 1 انگلی جیسا سائز کا پیس چلے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی اس کا جو مین سیکرٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر وہ سیکرٹ بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ اس کی گریوی ایسے بنے گی جیسے گوشت کی گریوی بنتی ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا سیکرٹ۔ اس میں سے ہم نے تھوڑے سے آلو کے پیس لیے ہیں، اور اس کو ہم کرنے والے ہیں گرینڈ۔ اور یہ گرینڈ کر کے ہم کیا کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں۔ جی، تو یہ ہو گئے گرینڈ۔ ابھی اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر بعد میں جیسے استعمال کروں گا آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ دیکھیں پیاز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا کچا پن آلریڈی نمک نے بھی ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تھوڑا گلے کا بھی خرابی ہے، اس لیے تھوڑا سا اگر آواز میں دقت ہو تو معذرت۔
अभी इसमें हम प्याज डाल हमारा हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे आलू। प्याज ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह। और अभी इसमें हम आलू डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। और जैसे ही ये हम आलू डालेंगे इसको, ये अक्सर हमारे जो घर में खाना बनाते हैं आलू की करी वगैरह, या आलू के साथ भी कुछ बनाते हैं, तो क्या करते हैं आलू लास्ट में डालते हैं, सब मसाला जात डाल के इसमें, यानी वो प्याज वगैरह सब कुछ ब्राउन करके बाद में इसमें हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के बाद में आलू डालते हैं। ऐसा नहीं करने का। इसी प्याज में इसका आलू का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको हम मिक्स करेंगे। आपको यकीनन अभी सब समझ में आ रहा होगा। ये अभी हम इसमें गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट। ये जो है ये इसी टाइम पे डाला जाता है। अगर इसको पहले डालेंगे तो हांडी यानी नीचे लग जाएगी, जिससे आपका सही कोई भी हांडी आप बना रहे हैं तो वो सही नहीं बनेगी। अभी ये नीचे लगने का ख़तरा नहीं है, इसलिए अभी डाल रहे हैं। और अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप 3 से 4 अदद ले सकते हैं, 3 से 4 अदद टमाटर। तो जितना भी खाएं उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। और अभी देखें इसका कलर भी अच्छा हो गया है माशाल्लाह। तो अभी इसको मिक्स करेंगे जी माशाल्लाह। ये हमारी तकरीबन आधी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन डाल देते हैं। और मैं अभी आपको सीक्रेट बताने लगा। ये है इसका सीक्रेट। ये जो हमने आलू थोड़े से ग्राइंड किए हैं, इसको हम डालेंगे एक बर्तन में। ठीक है, और ये बर्तन को साथ में हम वॉश भी कर लेंगे और इसमें पानी डालेंगे तकरीबन कुछ पाव के करीब। और ये इसमें हमने डाल दिया। अभी जो हमारे मसाला जाते हैं वो हम इसी में डालेंगे। मसलन लाल मिर्च 1 चम्मच, फिर हल्दी वो भी 1 चम्मच। तो इसमें डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। और नमक जो हमने पहले 1 चम्मच डाला था, और आप हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मेरे को लगता है 2 चम्मच काफ़ी होंगे। और अभी ये धनिया पाउडर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ इतना नहीं है। और ये ज़ीरा पाउडर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको करेंगे मिक्स। ये काली मिर्च थोड़ा सा डाल देने का है। और ये लास्ट में डालने का काली मिर्च फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काली मिर्च अभी इसके साथ हम डालेंगे तो काली मिर्च का भी टेस्ट आएगा। और काली मिर्च जब कभी भी आप डालें उसको यानी उसी टाइम ग्राइंड कर लें या उसी टाइम कूट कर डालें, क्योंकि उसकी फ्रेश खुशबू जो है बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने इसको मिक्स किया। अभी हांडी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी देखें ये आलू भी जो है उनका भी कच्चापन बहुत हद तक दूर हो चुका है। और अभी इसमें हम डालेंगे ये जो हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट डाल देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका कलर और भी निखर के आएगा। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। बर्तन कोई भी है उसको साफ़ करना तो ज़रूरी है। तो ये देखें हम इसको अभी मिक्स कर रहे हैं और देखें इसका कलर कैसा आ रहा है। और अगर आप इधर मेरी जगह होते तो आप खुशबू से भी एकदम फूले ना समाते, इतनी खुशबू आ रही है इसकी। तो अभी इसमें डालेंगे हम 2 गिलास के करीब पानी।
1 गिलास ये डाल दिया हमने और 1 गिलास और जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको फिर मिक्स करेंगे। अभी आप जब ये ग्रेवी तैयार होगी उस टाइम आप देखें ये कैसे बनती है। अभी इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। देखें अभी किसी किस्म का कोई भी यानी कच्चापन ना आलू में है, आलू भी मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। और देखें कितनी खूबसूरत दिख रही है। और अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अभी इसमें हम धनिया डाल देते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें से गेस्ट को देंगे। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो जानते हैं कि हम होटल में काम करते हैं और ये होटल से आपको लाइव कुकिंग दिखा रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा भी गेस्ट के लिए निकालेंगे। जो हमारे गेस्ट सहरी करेंगे उनके लिए हम बुफ़े में डालेंगे। तो माशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि हमारी पोटैटो की करी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें एकदम। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर धनिया डालेंगे और हमारी ये ग्रेवी तैयार है। और ये हमारे 2 आदमी के लिए है, एक मैं खाऊंगा और एक मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन है वो हम दोनों खाएंगे माशाल्लाह। ये हमारी सहरी है। ऐसे ही आप भी घर में बना सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि इसका मेथड जो है उसको फॉलो करने का है। हम जो घर में बनाते हैं वो मेथड पूरा फॉलो नहीं करते। ये हमारी सहरी है माशाल्लाह। ये देखें थोड़ा सा हम चावल खाएंगे और ये 2 चपाती है हमारे लिए, एक चपाती और माशाल्लाह ये सलाद। और ये है हमारी आज की डिश। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।